Hello students. So today we are going to start with the second chapter of the physics, that is force and laws of motion. Actually, this chapter is based on the force and the laws of the motion. You are going to learn about what actually the force is and what are the laws that are governing the motion. Okay. Now, in the previous chapter, that is in the motion chapter, you have studied about motion along straight line. Okay, and in that you have studied about the concept of speed, velocity, acceleration, and the three main equations of the uniformly accelerated motion, that is v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2as, s is equal to ut plus half at square. So these are the things that you have learned in the previous chapter. But the thing is that you know about these concepts which are related to the motion. But the biggest question now arises that what is the cause that give rise to the motion of any body, or what is the cause that brings any body to the rest. Okay, you all know about these things. You know about motion along a straight line, you know about what is speed, acceleration, velocity, everything. Okay, and when a body is performing uniformly accelerated motion, then they are going to satisfy these three equations. That is also known to you. But the thing is that what is the reason behind all these things? Like, as I told you, the reason behind the motion of an object, change in the speed. Like, if the object is moving, then obviously the ob- object will move, then there will be the speed in it, in that object. Okay, or if it will be moving, then if its speed is changing with respect to the time, then you can say that velocity is there. And if its velocity is changing with respect to the time, then accelerated motion, a body is performing what? It is performing a accelerated motion. Now the thing is that uh, one question may arise in your mind, that if a ball or if any object has been kicked, then after what time period it will stop, or what is the reason behind that, why the object um stop after certain time of performing motion. Okay, that like if your body is performing motion, then after certain time it is obvious that it is going to stop its motion. जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, अ बॉय हैज किक्ड अ बॉल. तो ये जो बॉल अगर आप किक करते हैं या कोई भी किक करता है, तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या होगी, रोल होते हुए रुक जाएगी. ठीक है, फिर आप देखिए, आप किसी भी चीज को फोर्स देते हैं या किसी चीज को धक्का देते हैं. जैसे यहाँ पे एक बॉय है जो ये येलो बॉक्स को धक्का दे रहा है, तो वो धक्का देगा. धक्का देने के बाद मैंने किसी चीज को धक्का दिया, तो वो कुछ टाइम के लिए क्या करेगी, मोशन करेगी, या थोड़ा सा क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर सर्टेन टाइम के बाद वो रुक जाएगा. तो इन सब चीजों के पीछे, दैट इज behind the motion of an object, behind the rest of an object, behind the speed of an object, velocity, acceleration, there is a reason. And that reason we are going to learn in this chapter, and the laws that are governing this reason. The one and the foremost reason behind all these phenomenon is your force. Okay, फोर्स जो है, जो वो सारी चीजें जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की, उनका क्या है, रीजन है. सो इफ वी आर डिस्कसिंग द फोर्स, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोर्स. ठीक है, अब अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, तो अ पुश और द पुल ऑन बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है, किसी भी चीज को आप पुश करिए, किसी भी चीज को आप पुल करिए, तो वो आपका क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है. आप कोई भी
कहीं पे भी जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि डोर पे क्या लिखा होता है, आइदर पुश और पुल। पुल लिखा है या पुश लिखा है, जिस भी तरीके से है, तो आप उस तरीके से क्या करते हैं, पुश होता है तो बाहर की तरफ उसे धक्का देते हैं, पुल होता है तो अपनी तरफ खींचते हैं। देखिए यहाँ पर एक इमेज दी है जो साइमल्टेनियसली आपको बता रही है, पहले बाइफरकेट किया गया है कि पहले में वो पुश कर रहा है और दूसरे वाली इमेज में वो क्या कर रहा है, बॉक्स को पुल कर रहा है, ठीक है। अब फोर्स जो है ये एक सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। मैथमेटिकली what actually the force is that we are going to learn in this chapter only, but in the next lecture, ठीक है। अभी सिर्फ एक literal meaning we are discussing about the force, okay, like so in the simple language, in everyday life or in the layman language, force is what, it is a push or the pull that we apply on any object which is having mass, ठीक है। mass बहुत important है, जिस भी ऑब्जेक्ट का मास है अगर उस पर आप कोई भी तरीके का धक्का देते हैं, चाहे वो आप उसे धक्का दें या आप उसको अपनी तरफ खींचें, तो वो एक तरीके का क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। अब फोर्स जो है, द सेकेंड थिंग, फोर्स कैंट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, ठीक है। फोर्स जो है उसको आप देख नहीं सकते, इट्स लाइक एयर, ओके। एयर को हम देख नहीं सकते लेकिन हम एयर को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स भी ऐसी चीज है कि आप जिसे देख नहीं सकते लेकिन आप उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने दरवाजे को धक्का दिया, ठीक है, तो आपने धक्का दिया तो वो खुल जाएगा, खुलेगा, तो दैट इज व्हाट यू हैव अप्लाइड द फोर्स इन टर्म्स ऑफ पुशिंग अ डोर एंड द डोर गेट्स ओपन। तो ये जो डोर ओपन हुआ है, दैट इज व्हाट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, okay, or you can say that is the effect, the push you have applied to a door, ठीक है। ऐसे ही फोर्स, इस तरीके का जो फोर्स है वो ऐसा ही नहीं कि पुश और पुल। अगर आप किसी चीज को लिफ्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इमेज में मैंने बताया है, अ मैन इज लिफ्टिंग अ बॉक्स, सो इफ यू आर लिफ्टिंग अ बॉक्स, आप किसी बॉक्स को उठा रहे हैं, किसी भी चीज को उठा रहे हैं, कोई भी बॉडी को उठा रहे हैं या उसको उठाकर रख रहे हैं, तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है, यू आर अप्लाइंग फोर्स। सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग द फोर्स, यू आर सीइंग द इफेक्ट कि भाई पहले तो बॉक्स जो था वो फ्लोर पे था, जब आपने उसको लिफ्ट किया, मतलब आपने उसको फोर्स को अप्लाई किया, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, अब वो थोड़ी ऊंचाई पे आ गया, ठीक है। अब इट कम्स टू अ पर्टिकुलर हाइट, और फिर वो ऊंचाई पर आकर देखिए फिर वो क्या कर रहा है, बॉक्स को नीचे रख रहा है, तो वो नीचे रखना भी क्या हुआ, एक तरीके का उसने फोर्स अप्लाई करके नीचे रखा है। सो अगेन you can see the effect of these things, okay, you can't you are not seeing the force but you are actually feeling the what I should say, you are actually feeling the effect of that force। फिर दूसरी जगह आपको फोर्स कहाँ पे दिखता है, स्ट्रेचिंग, हाँ, आप किसी भी चीज को स्ट्रेच कीजिए, लाइक रबर बैंड, ठीक है। अगर आप कोई रबर बैंड ले लेते हैं और उसको खींचते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो भी आपको दिखेगा कि भाई मतलब चेंज तो हुआ ना उसके, कुछ कुछ चीज चेंज हुई, तो उसका इफेक्ट आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, लाइक इफ यू आर ट्विस्टिंग अ क्लोथ, ठीक है, गीला क्लोथ है, उसमें पानी है, और अगर आप उसको ट्विस्ट करते हैं उसका पानी निकालने के लिए, so that is what, that is also a kind of force that we are applying, ठीक है। so देन अगेन प्रेसिंग, अगर आप किसी भी चीज को प्रेस करते हैं, ठीक है, दबाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक तरीके का फोर्स है। लाइक अ बलून इज देयर और उसके अंदर पानी है, तो आप उसको प्रेस करेंगे तो यू आर अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। तो उसका इफेक्ट, एज एन इफेक्ट आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि उसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। सो यू कैन से दैट, यू कैन से दैट you can't see the force but you can judge its effects, okay, and the effects that you can see, that is by applying the force in different activity, and that is what we have discussed, like lifting, stretching, pulling, pushing, twisting, pressing, etc, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ इफेक्ट्स तो मैंने डिस्कस किए, लेकिन जो मेजर इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीन्स वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग व्हाट, वी आर डिस्कसिंग द फिजिक्स। तो फिजिक्स is what it is, that is we are going to learn that what are the effects that
वी कैन सी ऑन अ बॉडी। तो देखो एक बॉडी अगर आपकी स्टेशनरी है, सपोज कोई बैठा है और आपने एकदम जोर से आके उसको धक्का दे दिया, तो धक्का दे दिया तो वो क्या हो जाएगा भाई, थोड़ी देर थोड़ी दूर तक तो वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, या मान लीजिए 2-3 कदम वो आगे बढ़ जाएगा। तो आपने क्या किया कि जो कोई स्टेशनरी बॉडी थी उसको मूव कर दिया। या तो फिर लाइक झूला होता है, ठीक है, झूले को अगर आप धक्का दें तो वो आगे पीछे क्या होता है, मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी एंड यू वांट टू ब्रिंग इट इन मोशन, so what you have to do, you have to apply the force. Similarly, if a body is in motion, ठीक है, it's not like uh, if a body is in rest, so you have to apply the force to bring it in motion. And if the body is in motion and you want to bring it in rest position, then also you have to apply the force. अगर कोई body है जो rest पे है और आप उसको sorry, अगर कोई बॉडी है जो मोशन परफॉर्म कर रही है और आपको उसे रेस्ट पे लाना है, तो भी आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जोर जोर से झूला आप झूल रहे हैं और उस झूले को अगर आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो आपको कभी कभी अपने फुट से एकदम ज्यादा फोर्स प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है फ्लोर पे, ताकि आपका झूला रुक जाए, ठीक है। और नहीं तो बहुत सारी चीजें जिसमें हमें क्या करना होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है, जिससे कि बॉडी क्या हो जाए, रुक जाए। फिर उसके बाद अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई बॉडी धीरे धीरे मूव कर रही है और आपने जोर से फोर्स लगाया, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। आपको वैसे ही अगर किसी का डायरेक्शन चेंज करना है, किसी बॉडी का, मतलब मान लीजिए कोई बॉडी आपकी लेफ्ट में मूव कर रही थी और आपने उसको कोई दूसरे डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर दिया, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, बॉडी का जो डायरेक्शन है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। सपोज इफ अ बॉडी इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, कंटिन्यूसली इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और लेफ्ट डायरेक्शन से ही कोई एक फोर्स आ गया, तो लेफ्ट डायरेक्शन से ही कोई फोर्स आ गया जो उसको पुश कर रहा है राइट डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मोशन चेंज हो जाएगा एंड बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ अ बॉडी। अगर आपकी कोई बॉडी है और आप उसको फोर्स अप्लाई करें, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक बलून है, बलून एक एयर टाइट बलून है, अगर आप उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, शेप और साइज जो बॉडी, या आप देख लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग को भी आप जब कंप्रेस करेंगे तो भी उसका क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दीज आर द फ्यू इफेक्ट्स of the force that you can see when the force has been applied on the body, ठीक है। Now types of forces, see the types of forces that we are going to discuss over here are the balanced force and unbalanced force, okay। तो आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि बेसिकली वी आर हैविंग ओनली दीज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नो। फोर्सेस को एक्चुअली क्लासिफाई करना चाहें तो बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जब हमें ट्राइंगल, हमने मैथ्स में जब हम पढ़ते हैं और हमें ट्राइंगल को क्लासिफाई करना पड़ता है, तो हम देखते हैं ट्राइंगल को एंगल के बेसिस पे जब क्लासिफाई करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है। साइड्स के बेसिस पे करना होता है तो हम कहते हैं आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, ठीक है। तो ऐसे ही फोर्सेस जो होते हैं, तो फोर्स के भी जो टाइप है बेसिकली बहुत तरीके के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे मतलब बहुत तरीके के फोर्स होते हैं। तो हमें लेकिन बेसिकली जो यहाँ पे पढ़ना है, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड योर लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो तीनों लॉज को समझने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट हमें चाहिए फोर्स के बारे में, जो बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्स हमें पढ़ना है, तो वो जो है वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बैलेंस रखता है। बैलेंस रखता है मतलब, यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बैलेंस्ड फोर्स आर द टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
मतलब कि अगर मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है और उस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप सेम अमाउंट का फोर्स कोई भी दो डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर द बैलेंस्ड फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ the two forces should be equal and forces should be in opposite direction. opposite का मतलब है लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ फोर्स जो है वो अप्लाई होना चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड में अप्लाई होना चाहिए, वेदर इट इज पुश और वेदर इट इज पुल। ठीक है, तो वो जो टाइप का फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब बैलेंस्ड फोर्स अगर मैंने अप्लाई किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि इफ द फोर्स इज बीन अप्लाइड देन देयर मस्ट बी सम इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो भाई इफेक्ट ये है कि बैलेंस्ड फोर्स do not cause any change in the motion। ठीक है, that means if your body is in motion and if it is in motion and you are applying a balanced force, तो वो अपना मोशन जो है वो करती ही रहेगी, वो कोई रुक नहीं जाएगी। समझ में आ रही है बात। और इफ द बॉडी इज इन रेस्ट तो वो रेस्ट पे ही रहेगी इफ यू आर अप्लाइंग अ बैलेंस्ड फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इफ यू आर अप्लाइंग अ बैलेंस्ड फोर्स देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स वो अगर मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी इफ यू आर अप्लाइंग अ बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, लेकिन एक चेंज हो सकता है बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होने पे, दैट इज चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। कि भाई अगर आप बॉडी को चेंज कर देते हैं, शेप ऑफ द सॉरी इफ लेट्स टेक द एग्जांपल, इफ अ बलून इज देयर, ठीक है, उसमें हवा भर दी गई है और आप दोनों तरफ से ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, उसका शेप मोमेंटरीली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर पाता है लेकिन शेप जरूर चेंज कर सकता है। ठीक है, और बैलेंस्ड फोर्स का दूसरे क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब अनबैलेंस्ड फोर्स इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स दे आर नॉट इक्वल इन डायरेक्शन, सॉरी दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कुछ तरफ से ज्यादा लगेगा और कुछ तरफ से कम फोर्स लगेगा, तभी तो हम कहेंगे कि ये अनबैलेंस्ड है। समझ में आ रही है बात। बैलेंस होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, जब मैग्नीट्यूड आपका अनइक्वल हो जाएगा तो वो जो फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसका कोई वो नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई डायरेक्शन अपोजिट ही होना चाहिए। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स कॉज चेंज इन द मोशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनबैलेंस्ड फोर्स कॉजेस चेंज इन द मोशन, यही जो पॉइंट है दिस इज गोइंग टू लीड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो हम आगे लॉस पढ़ने वाले हैं उसमें आपको ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स। और उसमें ही खासकर ये वाला पॉइंट दैट अनबैलेंस्ड फोर्स कॉजेस चेंज इन मोशन, मतलब कि अनबैलेंस्ड फोर्स से ही आपका जो है मोशन, स्टेट ऑफ मोशन जो है वो बॉडी का चेंज हो जाता है। मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मूव करने लगेगी और अगर वो मूव कर रही है तो वो रुक जाएगी। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल दिया है, एक बॉक्स है जिसके दोनों तरफ से दोनों लोग क्या है इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये बॉडी का पोजीशन चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, so this is the example of the balanced force. Now the second one is the example of the unbalanced force. See, ये सीसॉ है,
सीसॉ पे आप देख सकते हैं 2 रिक्शा है, पहले तो ये बैलेंस्ड पोजीशन पे है। अब मैंने एक तरफ थोड़ा ज्यादा वेट डाल दिया या आप कहिए ज्यादा फोर्स लग गया, 2 रिक्शे यहाँ पर आ गए, तो ये क्या हो गया, ये सीसॉ हिल गया। तो दैट इज व्हाट इट हैज ब्रॉट द सीसॉ इनटू इट्स मोशन। ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, आप यही कहेंगे ना, ये इक्विलिब्रियम था, और अब ये नॉन इक्विलिब्रियम हो गया, जैसे ही उस पे एक दूसरे ज्यादा फोर्स आ गया, ये एक दूसरी रिक्शा उस पर चढ़ गई है। ठीक है, so this is what all about the force, the reason behind the motion of an object। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अगेन थोड़ा सा समरी बता देती हूँ कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए जो मेन फैक्टर आपका प्ले कर रहा होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। और फोर्स एक ऐसी चीज है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन उसके इफेक्ट हमें क्या होते हैं, फील होते हैं। और इन टर्म्स ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स हमने देखा, द डिफरेंशिएट किया फोर्स को। ठीक है, एंड विद दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉज ऑफ मोशन इन द next lecture। Okay, so you have to keep these concepts properly in mind, most importantly about the balanced and the unbalanced force। So for today I'm going to wrap up on this point only। Okay, so be prepared for the next lecture. Thank you।